بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمان، جس میں آج آپ سن سکیں گے دنیا سے آنے والی آج کی چند اہم خبریں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی سے آن کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی کوئی بھی لیٹسٹ نیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں خبروں کی جناب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کو۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال ہونے تک بھارت سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزراء کے ہمراہ عوام سے براہ راست گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک نے بھارت کو چین کے خلاف معاشی محاذ پر تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کشمیر میں مظالم پر خاموش رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کسی انسانی بحران کے معاملے میں بھارت کا نام آتا ہے تو مغربی ممالک اپنے مفادات کی خاطر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم کیا ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے دیگر موضوعات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ قوم کرونا وائرس سے متعلق SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ عید الفطر کی چھٹیوں میں اپنی قوم اور لوگوں کا خیال رکھیں۔ SOPs کا جتنا خیال رکھیں گے اسی قدر اس مشکل گھڑی سے نکل جائیں گے۔ انہوں نے بھارت میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں کرونا کیسز کی تعداد میں ٹھہراؤ آیا ہے، یعنی ان میں اضافہ نہیں ہو رہا، جبکہ بھارت بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پمز میں کل ڈاکٹر نے بتایا کہ کرونا کیسز اب اوپر نہیں جا رہے۔ وزیراعظم عمران خان نے تاکید کی کہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں کیونکہ ماسک سے کرونا پھیلنے کے خدشات 50% کم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں لاک ڈاؤن لگانے پر مجبور نہ ہو جاؤں کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے۔ شامل کرتے ہیں اس کے بعد اگلی خبر کو۔ قومی احتساب بیورو نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں اور مبینہ منی لانڈرنگ کے کیس میں شہباز شریف کی ضمانت کے لاہوری ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب ترجمان کے مطابق نیب کی پراسیکیوشن ٹیم نے شہباز شریف کے خلاف ٹرائل کورٹ میں دائر کرپشن ریفرنس میں پیش کیے گئے شواہد کی روشنی میں اپیل دائر کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب ایک قومی ادارہ ہے جس کے تمام اقدامات آئین و قانون کے مطابق کسی بھی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر اور ملک و قوم کے مفاد میں انجام دیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی واضح ہدایت ہیں کہ تمام انکوائریوں اور تحقیقات کو نہ صرف بروقت اور میرٹ کے مطابق منطقہ انجام تک پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں بلکہ ٹھوس شواہد پر مبنی ریفرنس احتساب عدالتوں میں دائر کیے جائیں تاکہ بدعنوان عناصر کو قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے۔ واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 22 اپریل کو آمدن سے زائد اثاثوں جات اور منی لانڈرنگ کیس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی درخواست ضمانت منظور کر کے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے شہباز شریف کے ضمانت کے کیس کی سماعت کی تھی۔ اپنے تحریری فیصلے میں ہائی کورٹ کے بینچ نے مشاہدہ کیا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر رشوت لینے یا ناجائز پیسہ وصول کرنے کا کوئی الزام نہیں ہے۔ بعد ازاں شہباز شریف نے علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کے لیے اپنا نام بلیک لسٹ سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے ایک بار پھر رجوع کیا۔ اس بار بھی فیصلہ ان کے حق میں آیا اور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو علاج کے لیے ایک بار بیرون ملک سفر کرنے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ تاہم براستہ قطر لندن روانگی کے لیے ایئرپورٹ پہنچنے پر FIA امیگریشن حکام نے انہیں بتایا کہ چونکہ ان کا نام پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ PNIL میں ہے، اس لیے وہ پرواز پر سواری نہیں کر سکتے۔ شامل کرتے ہیں اس کے بعد اگلی خبر کو۔ امریکہ نے طالبان اور افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ داعش کے عسکریت پسندوں کو پہلے سے ہی کشیدہ صورتحال کو مزید خراب کرنے سے روکنے کے لیے جاری امن عمل میں سنجیدگی سے مشغول ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائز نے واشنگٹن میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم ابھی بھی اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے، لیکن میں نشاندہی کروں گا کہ ماضی میں کابل میں شیعہ برادریوں پر بھی اسی طرح کے حملوں میں داعش ذمہ دار رہا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت میں ہفتے کے روز اسکول حملے میں کم از کم 80 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر طلباء تھے۔ اس حملے کی پوری دنیا نے شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر ولکان بوزکیر نے دھماکے کو گھناؤنا اور بزدلانہ حملہ قرار دیا، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس گھناؤنے جرم کے ذمہ داروں کو جوابدہ ہونا چاہیے۔ تاہم امریکہ نے مذمت سے ایک قدم آگے بڑھایا اور طالبان کی شمولیت سے انکار میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے ان سے تقریباً نصف صدی سے جنگ میں ملوث ملک میں امن قائم کرنے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اپیل کی۔ نیڈ پرائز نے کہا کہ طالبان نے حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے اور ہم نے ان کے آنے والے عید کی تعطیلات پر 3 روزہ جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
उनका कहना था कि हम तालिबान और अफगान रहनुमाओं से मुतालबा करते हैं कि वो अमन के जारी अमल में संजीदगी से मशगूल हों ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अफगान अवाम दहशत गर्दी और तशद्दुद से पाक मुस्तकबिल का लुत्फ़ उठाएँ। अमरीकी हुर्रियत ने लड़कियों के स्कूल में मासूम अफगान बच्चियों को निशाना बनाने के जिम्मेदारों की मजम्मत करते हुए इस बात की निशानदही की कि ज़्यादातर लड़कियाँ नौउम्र थीं और उन्हें तालीम और रोशन मुस्तकबिल के हसूल की वजह से मारा गया। वाज़ेह रहे कि तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि उनकी तंजीम इस हमले में मुलव्वस नहीं है और उन्होंने ज़ालिमाना और बिला जवाब तशद्दुद की मजम्मत की थी। अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान पर इसका इल्ज़ाम आयद किया ताकि ताहम अमरीकी मीडिया ने निशानदही की कि धमाके शिया इलाके में हुए जिसे गुज़श्ता बरसों के दौरान दाअश के सक्रियत पसंदों की जानब से वहशियाना हमलों का सामना रहा है। शामिल करते हैं उसके बाद अगली खबर को। सऊदी अरब ने मस्जिद अल अक्सा पर इसराइली फ़ौज के हमलों की शदीद मजम्मत की है, जबकि इसराइली फोर्सेज की जानब से बैतुल मुक़द्दस और गज़ा में किए गए हमलों पर आलमी हलकों की जानब से भी सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत ख़ारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक मस्जिद अक्सा इस्लाम के मजहबी मकामात में से एक है और यहाँ इसराइली फोर्सेज की कार्रवाइयों की वजह से मुस्लिम दुनिया में तशवीश पाई जाती है। बयान में कहा गया कि सऊदी वजारत ख़ारजा काबिज़ अफवाज की जानब से इबारत गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करते हुए किए जाने वाले हमलों की शदीद मजम्मत करती है। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि सूरत हाल कशीदा होने पर इसराइल का एहतसाब करे और बैनुल अक़वामी मुआहिदों और समझौतों की खिलाफ वर्जी करने वाली किसी भी इश्ताल अंगेज़ी के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली पुलिस ने मुसलसल तीसरे रोज़ मस्जिद अल अक्सा के अहाते में दावा बोला फ़लस्तीनी इबारत गुजारों पर रबर में लिपटे स्टील की गोलियां, स्टिंग ग्रेनेड्स और एंसो गैस के शेल बरसाए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। बैतुल मुक़द्दस में जुमा 7 मई से जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों साल 2017 के बाद बदतरीन हैं, जिसमें यहूदी आबादकारों की जानब से इलाके के मशरकी हिस्से शेख जराह से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी खानदानों को बेदखल करने के तवील अरसे से जारी कोशिशों ने मज़ीद कशीदगी पैदा की है। दूसरी जानब अरब रियासतों की नुमाइंदा तंजीम अरब लीग के सरबराह अबू अल अखीद ने कहा है कि गज़ा पर इसराइल का फ़िदाई हमला अंधाधुंध और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि यरूशलेम में खतरनाक इश्ताल अंगेज़ी का जिम्मेदार इसराइल है। साथ ही उन्होंने तशद्दुद रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी तौर पर इक़दाम करने का भी मुतालबा किया है। शामिल करते हैं उसके बाद अगली खबर को। कोरोना वायरस से शदीद मुतासर पड़ोसी मुल्क में गुज़श्ता 3 हफ्तों से यौमिया 2.5 से 3.5 हज़ार तक हलाकतें होने की वजह से जहां शमशान घाटों और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ चुकी है, वहीं अब भारत के सबसे बड़े और मुक़द्दस तरीन दरियाए गंगा में मुख्तलिफ शहरों के करीब 33 लाशों को देखे जाने के बाद वहाँ दहशत फैल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 मई को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में दरियाए गंगा में मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों लाशों को तैरते हुए देखा गया। लाशों को गंगा में तैरता हुआ देखकर जहां मुख्तलिफ इलाकों में दहशत फैल गई है, वहीं मीडिया पर खबरें नशर होने के बाद भारत भर में भी खौफ फैल चुका है। रिपोर्ट में बताया गया कि रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर के मुख्तलिफ गाँवों के करीब दरियाए गंगा में लाशों को तैरते हुए देखा गया। लाशों को तैरते हुए देखने के बाद मकामी अफराद ने ज़िली इंतज़ामिया को मुतला किया, जिस पर इंतज़ामिया ने तफ्तीश शुरू कर दी है कि तैरती लाशें कहाँ से आईं। रिपोर्ट में मकामी अफराद और मकामी इंतज़ामिया का हवाला देते हुए बताया गया कि मुमकिन तौर पर तैरती लाशें दूसरी रियासत पर या दूसरे ज़िले से गंगा में बहाई गई होंगी और ख्याल किया जा रहा है कि मरने वाले तमाम अफराद को कोरोना वायरस से जलबसी होंगे। शामिल करते हैं उसके बाद अगली खबर को। अमेरिका के मशरकी साहिली पट्टी को निसफ ईंधन फराहम करने वाला अहम पाइपलाइन नेटवर्क साइबर हमले की वजह से गुज़श्ता 4 रोज़ से बंद है, जबकि अमेरिकी हुकूमत और अमेरिका के फ्यूल पाइपलाइन ऑपरेटर पाइपलाइन नेटवर्क को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाइपलाइन पर हमला सबसे ज़्यादा रुकावट डालने वाली डिजिटल तामन स्कीमों में से एक है और इसके नतीजे में मशरकी अमेरिका में ईंधन की फराहमी में खलल पड़ रहा है, जिससे बेंच मार्क पेट्रोल की कीमतें 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई हैं। पाइपलाइन पर हमले का शोबा करने वाले साइबर ग्रुप डार्क साइड की जानब से पीर को जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, मुआशरे में मुश्किलात पैदा करना नहीं है। कानून साजों ने अमरीकी तवानाई के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूत तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और वाइट हाउस ने फ्यूल नेटवर्क को दोबारा शुरू करना अव्वलीन तरजीह बताई है और इसके असरात का अंदाज़ा लगाने और मज़ीद रुकावटों से बचने के लिए फ़ेडरल टास्क फोर्स तश्कील दी है। अगरचा इस हमले के बारे में अमरीकी हुकूमत की तहकीकात इब्तदाई मराहल में है, एक साबिक अमरीकी अहदेदार और 3 इंडस्ट्री ज़राए ने बताया कि शोबा है कि हैकर्स एक साइबर क्राइम ग्रुप डार्क साइड से है। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन ने बताया कि ऐसा लगता है कि यह ग्रुप तजर्बाकार साइबर क्रिमिनल्स में मुश्तमिल है, जिसमें वो अपने अहदाफ से ज़्यादा रकम लेना चाहते हैं।
जनूब मशरकी अमेरिका में पंप्स पर कीमतों में सबसे पहले इजाफा का इम्कान है और ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों के टैंक्स भर रहे हैं, जिसकी वजह से तलब में इजाफा हो गया है। जनूब मशरकी इससे सबसे ज़्यादा इस पर इन्हिसार करता है और इसके शुमाल में कायम रियासतों के मुकाबले में इसके पास कम मुतबादल हैं और यहाँ गुज़श्ता शट डाउन के दौरान कीमतों में इजाफा देखा गया है। गैस बडी में पेट्रोलियम तजियाकार पैट्रिक डी हान ने कहा कि जनूब मशरकी रियासतों जैसे जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना और टेनेसी में गैस स्टेशन की गैर मामूली खरीदारी नज़र आ रही है। पाइपलाइन ऑपरेटर ने इतवार के रोज़ कहा था कि उन्होंने ईंधन के टर्मिनल्स और कस्टमर के तरसीली पॉइंट्स के दरमियान कुछ छोटी लाइनें दोबारा शुरू कर दी हैं, ताहम इसकी मरकज़ी लाइनें बंद हैं। इसने 8,850 किलोमीटर के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर दोबारा शुरू करने के लिए कोई टाइम लाइन फ्राहम नहीं की। वाज़ेह है कि जनूबी मशरकी रियासतों तक पाइपलाइन का निज़ाम ईंधन की फराहमी का अहम हिस्सा है। यह यौमिया 25 लाख बैरल से ज़ायद पेट्रोल, डीजल और चीट ईंधन मुंतकिल करता है, जो गाड़ियाँ चलाने वालों और बड़े हवाई अड्डों को सप्लाई देता है। दरी असनाद साइबर हमले से अमरीकी पाइपलाइन के बंद होने के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। न्यूयॉर्क के WTI क्रूड और लंदन ब्रेंट ऑयल दोनों की कीमतों में तकरीबन 0.8% का इजाफा हो चुका है। शामिल करते हैं उसके बाद अगली खबर को। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा इंतहाई गैर मामूली रहा और इसके वाज़ेह नताइज आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। मंगल को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस दौरे में गर्मजोशी गैर मामूली थी, जिसमें वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करने आए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की वली अहद से वन आन वन और वफूद की सतह पर बातचीत हुई और इसके बाद इशाइये पर मुलाकात में दोनों तरफा से खुलकर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आज दोनों तरफ से ये आगाही और इतराफ़ है कि हमारे तल्लुकात गैर मामूली नोयत की हैं और हम इसकी गहराई और वसअत को समझते हैं और उनको मज़ीद आगे बढ़ाना हम दोनों की ज़रूरत है। हमारे सियासी और स्ट्रेटेजिक तल्लुकात उम्दा थे और उनको नया रुख देने की ज़रूरत है। इन मुज़ाकरात में हमने बातचीत में इस पर तवज्जो दी कि इक़्तिसादी शराकत दारी में कैसे इजाफा कर सकते हैं, सरमायाकारी और दो तरफ़ा तजारत को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं, रोज़गार के मौक़े कैसे पैदा कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अच्छी पेशरफ्त यह है कि ये बातें हम पहले भी किया करते थे, लेकिन इनका कोई बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर नहीं था और इनमें हमने एक बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तरीक़ाकार वाज़ेह किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, उसके तहत अब एक बाज़ाब्ता स्ट्रक्चर बन गया है और इसके 3 असूल तय किए हो गए हैं कि सिक्योरिटी और सियासी मामलात में क्या बात हो गई और कौन लड़ करेगा, इक़्तिसादी मैदान में क्या बात होगी और कौन लीड करेगा, इसके अलावा सकाफ़ती और सॉफ्ट इमेज से मुतल्लिक़ सरगर्मियों की कौन क़यादत करेगा और क्या करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आपकी कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।